Bonjour tout le monde. In this video, we'll start chapter number 4 of Mon Passport 2, which is Les Trois Souhaits. So, what is the meaning of Trois Souhaits? Basically, Trois is 3 and Souhait means wishes. So, we'll cover the in-text part of this chapter in this video. Let's start from here where it says Elena parle à Louis et Philip, means Elena is speaking or talking to Louis and Philip. Elena का डायलॉग आता है Si la fée vous accorde trois souhaits, que choisirez-vous? Means अगर जो फेरी है, फे इज फेरी, vous accorde means gives you 3 wishes, what will you choose or what are you going to choose? Then Louis, he says, mon premier vœu est que je voudrais faire un tour du monde. Means my first wish is that I would like to do a world tour. ठीक है, मेरे को वर्ल्ड टूर पे जाना है, ये मेरी फर्स्ट विश होगी. दeuxième मीन्स सेकेंड, मीन्स उसकी सेकेंड विश क्या होगी? वो कहता है je voudrais un portable, means I want a mobile phone. Et puis means and then. Nous devons aller à l'école 3 jours par semaine, means we have to go to school 3 days by week. मतलब 3 दिन में ही, एक हफ्ते के अंदर हमें स्कूल जाना पड़े, बाकी दिन हमारा क्या हो, वीकेंड ही हो. 5 c'est मीन्स 5th, मतलब 5 days इट इज़ टू मच. मतलब 5 दिन जो हमें जाना पड़ता है वीक के अंदर, दे आर टू मच. आई जस्ट वॉन्ट टू गो टू स्कूल जस्ट फॉर 3 days बाय वीक. ओके, देन एलेना, शी अगेन एलेना का डायलॉग आता है और वो कहती है moi je voudrais avoir une belle robe blanche comme les princesses. means me, I would like to have a beautiful white dress like the princesses has, and a big car. Grande voiture is a big car. Et puis means and then. Pas de devoir à faire means no homework to do. Then Philippe का डायलॉग आता है, he says les trois vœux ne sont pas suffisants, means 3 wishes are not sufficient. Now he is a bit greedy and he says donc je vais demander à la fée un nombre de vœux infini. means मेरी पहली विश क्या होगी? I would like to have infinite number of wishes. ठीक है. Elena and Louis, they laugh together, haha, and says tu triches, means you are cheating. Tu n'as pas Tu n'as pas le droit de demander le vœu d'avoir autant de souhaits, means you don't have the right to have unlimited number of wishes. So this was the text part. Now coming to the questions related to the text, where the first question is répondez. Répondez means to respond or to answer. First question is que voudrait Louis? I would like to all of you to do these questions yourself. I am just translating them for you. It says que voudrait Louis means Louis को क्या चाहिए. Second है quels sont les trois vœux de Elena, means what are the 3 wishes of Elena. Third part is que désire Philippe, means Philip क्या desire करता है. Then we have the second question which is dit vrai ou faux, मतलब true or false बताना है. First question is Philippe voudrait un portable, means Philip को एक मोबाइल फ़ोन चाहिए. So this is wrong because हमारा क्या था, Louis demanded for a mobile phone. Then second is Elena veut une belle robe, means Elena wants a beautiful dress. So this is true. Then we have Louis voudrait faire un tour du monde, means Louis को एक world tour करना है. So this is again true. Then the last one, fourth one is Louis préfère aller à l'école seulement 2 jours par semaine, means Louis को स्कूल सिर्फ 2 दिन जाना है हफ्ते के अंदर. So this is wrong because he wanted to just go for 3 days. Then we have through which you text the nombre ordinal, means you have to find 2 ordinal numbers. तो ordinal cardinal, I hope you know the difference. जैसे 1 2 3 हमारे होते हैं cardinal numbers and first second third ही होते हैं हमारे these ordinal numbers. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 ordinal numbers आए थे. First is deuxième means second, and then we have premier means first. ठीक है, तो this is also ordinal number. So 2 मिल गए. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, si la fée vous accorde 3 vœux, que choisirez-vous? नाउ दिस इज डिपेंडेंट ऑन यू. ये आप लोगों के ऊपर क्वेश्चन है, ऑन योर स्किल्स एंड ऑन योर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी. यू ऑल हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. इट सेज कि जो फेरी है वो इन तीनों को छोड़कर आपको 3 विशेज़ ग्रांट करती. सो व्हाट दोज विशेज़ वुड बी. ओके,
Now let's come to the grammar topic, which is the last topic of this chapter. After that we have the exercise which we will discuss in the upcoming video. ओके लेट्स स्टार्ट विद द ग्रामर वेयर वी हैव दी आई आर वर्ब्स. अब देखो हमने हमारे पिछले जो चैप्टर्स थे उनमें हमने ई आर वर्ब्स को अच्छी तरह से डिस्कस करा था. हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास 3 कैटेगरी होती हैं वर्ब्स की, इनमें जिनमें से एक ई आर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, सेकेंड वी हैव आई आर और लास्ट हमारी होती है आर ई. अभी के लिए आर ई को भी छोड़ते हैं, ई आर हमारी हो चुकी है. कमिंग टू दी आई आर वर्ब्स जो कि अभी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. सो देखो बेसिकली सिंपल सा हमारा रूल होता है, बुकिश लैंग्वेज को छोड़ के मैं सिंपली आप लोगों को समझाती हूँ कि जो भी वर्ब हमारी आई आर से एंड करते हैं, सपोज मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, जैसे यहाँ पर लिस्टेड भी है बहुत सारी वर्ब्स दैट एंड्स इन आई आर, जैसे अपलोडेर विच इज़ टू अपलोड लाइक cheers or to clap for somebody when they have achieved something good, then agir which is to act, choisir to choose and all these verb. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी कॉन्जुगेट करी गई है फिनीर वर्ब, मैं उसका आप लोगों को एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ. सो सपोज मेरे पास एक वर्ब है फिनीर, ठीक है, मेरे को कहा गया है कि मेरे को इसे कॉन्जुगेट करना है. अब आप लोगों को पता ही है कॉन्जुगेट वर्ब्स वगैरह, यू आर ऑलरेडी फैमिलियर दैट मच इन फ्रेंच लैंग्वेज, तो इतनी चीज़ों से तो आप फैमिलियर ही होंगे. अब मेरे को कहा गया है कि फिनीर वर्ब को मेरे को कॉन्जुगेट करना है. आप लोगों ने सिर्फ पढ़ी हुई है ई आर वर्ब. अब आई आर वर्ब की जब बारी आती है उसको कॉन्जुगेट करने का भी सिंपल वही मेथड है, बस क्या होता है जैसे ई आर के अंदर खुद की एंडिंग्स होती है वैसे आई आर वर्ब्स की भी खुद की एंडिंग्स होती हैं. तो हम क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला स्टेप है जो हमारे पास वर्ब दे रखी है फिनीर, जैसे फॉर एग्जांपल फिनीर दे रखी है अभी के लिए, तो जिसका मतलब होता है टू फिनिश. तो सबसे पहले हम इसमें से आई आर को जो है कट कर देंगे. ठीक है, आई आर कट करने के बाद हमारे पास क्या बचा, ओके सॉरी, फिनीर में से मैंने आई आर को कट कर दिया तो मेरे पास क्या बचा, वी आर लेफ्ट विद एफ आई एन. ठीक है, तो ये चीज़ है जो है मेरे पास बची. नाउ अब मेरे पास क्या बचा, एफ आई एन बचा व्हेन वी कटेड द आई आर. देन अब जितने भी मेरे सब्जेक्ट प्रोनाउंस है जैसे य यू एल एल, ये सारे आप लोगों को पता होंगे होपफुली, तो इनको मैं जो है लिस्ट आउट कर लूँगी अभी. So all these subject pronouns are there on your screen. j, q, l, l, no, vu, l, l. ये वाले हमारे सारे होते हैं singular and all these are plural. अब मेरा सेकेंड स्टेप, ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप कि हमने आई आर को कट कर लिया. नाउ कमिंग टू सेकेंड स्टेप, जो ये हमारा एफ आई एन है इसको मैं हर एक सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ जो है पुट कर दूंगी. So I have putted all these things that I told you in second rule. So please don't mind my handwriting. It's just like I'm writing on the screen, so it might not be well suited for you all, but please adjust. Okay, तो ये मेरा हो गया सेकेंड स्टेप. पहला स्टेप आई आर कट करा, सेकेंड स्टेप पुट रेस्ट ऑफ द पार्ट विद द सब्जेक्ट. नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टेप विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ आई आर वर्ब, दैट इज़ आप लोगों को एंडिंग्स पुट करनी है. नाउ एंडिंग्स जो हमारी होती हैं वो हमारी होती हैं आई एस आई एस आई टी आई डबल एस ओ एन एस, आई डबल एस ई जेड, आई डबल एस ई एन टी एंड आई डबल एस ई एन टी. अब पुट करके भी दिखाती हूँ साथ साथ. ज के साथ हमारी लगेगी एंडिंग आई एस, ट्यू के साथ भी लगेगी आई एस, इल के साथ लगेगी आई टी, एल के साथ भी लगेगी आई टी, नू के साथ लगेगी आई डबल एस ओ एन एस. ओके, देन वू के साथ लगेगी आई डबल एस ई जेड, देन इल के साथ लगेगी आई डबल एस ई एन टी एंड एल के साथ भी हमारी यही सेम एंडिंग. ओके लेट मी जस्ट डू इट अगेन, आई डबल एस ई एन टी एंड एल के साथ भी यही हमारी सेम एंडिंग लगेगी. इफ़ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और अदरवाइज देयर इज दिस थिंग ऑलरेडी मेंशन्ड इन योर बुक ऑल्सो. सो आई होप आपको एंडिंग्स भी समझ आ गई होंगी. आई एस आई टी आई डबल एस ओ एन एस, आई डबल एस ई जेड, आई डबल एस ई एन टी एंड अगेन द सेम आई डबल एस ई एन टी. अब ये चीज़ मैंने आपको अपने तरीके से समझा ली. अब बुकिश लैंग्वेज में भी देख लेते हैं. सो द सेम थिंग इज डिस्क्राइब्ड ओवर हियर कि आई एस आई टी आई डबल एस ओ एन एस, आई डबल एस ई जेड, आई डबल एस ई एन टी. तो कोई भी हमारी रेगुलर आई आर वर्ब जो होती है वो इसी मैनर में हमारी कॉन्जुगेट होती है. बट देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं.
कई वर्ब्स होती हैं जो IR होता है उनके पीछे, बट वो डिफरेंट कॉन्जुगेशन होती है उनकी, जो कि हमें याद करनी होती है। तो वो आगे जैसे हमारा लेवल इंक्रीज़ होगा, चैप्टर्स इंक्रीज़ होंगे, तो आगे हम उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। देन वी हैव डन दिस. Now coming to the last topic of this chapter, sorry, not the last second topic of this chapter, which is negation. Negation you already know. Negatives हम कैसे फॉर्म करते हैं. So let's read the rule. It says न and pa is placed around a conjugated verb to negate an affirmative sentence in French. Suppose मैंने कहा I am finishing, ठीक है, तो मैं सिंपली क्या कह दूंगी, यही वाली चीज़ je finis जो मैंने कॉन्जुगेट करा. अब मेरे को अगर कहना है कि I am not finishing, ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस को मैंने नेगेटिव में कन्वर्ट करा. तो वैसे ही फ्रेंच में हम कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं कि जो हमारा वर्ब है ना, यहाँ पर हमारी वर्ब क्या है, फिनी है इस वाले सेंटेंस के अंदर, इसके आगे न और इस फिनी के बाद पा लगा देते हैं. तो ये हमारा सेंटेंस क्या बन गया, ज न फिनी पा, मीन्स आई एम नॉट फिनिशिंग. ऐसे ही इसके आगे भी न, इसके बाद भी पा, ठीक है. तो ऐसे हमारा जो है नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म हो जाता है. सिंपल रूल था. अब दूसरी चीज़ क्या आती है कि जो हमारा न होता है ना, वो एन अपोस्ट्रोफी में चेंज हो जाता है. एन का जो ई है वो तो हमारा कट हो जाएगा, ठीक है, एन का ई कट हो गया और वो हमारा क्या फॉर्म ले लेगा, इस अपोस्ट्रोफी का फॉर्म ले लेगा. इट्स लाइक दिस, ओके. जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ अपलोदीर, ठीक है. अब ये अपोस्ट्रोफी में चेंज कब होता है, जब हमारा वॉवल हो. जैसे कि अगर मैं ये इस वाली वर्ब को कॉन्जुगेट करती हूँ, तो मैंने लिखा ज और क्या लिखा, अपलोदीर का IR कट करने के बाद मेरे पास क्या रह गया, ये रह गया, ठीक है, अपलोड. अब पहला हमारा क्या है, IS ऐड करना, तो IS मैंने ऐड कर दिया. अब मेरे को क्या कहा गया कि आई हैव टू कन्वर्ट दिस थिंग इनटू नेगेटिव, तो मैं अपलोदी के आगे न लगा दूंगी और इसके बाद पा लगा दूंगी. नाउ अब रूल का हमारा क्या आता है कि जहाँ पर दो वॉवल आ जाएंगे, फ्रेंच के अंदर वॉवल AEIOU, तो यहाँ पर देखो E भी वॉवल है, A भी वॉवल है, तो इसको ई को हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा और एक अपोस्ट्रोफी को पुट करना पड़ेगा. सो ये हमारा सेकंड रूल कहता है. एक इतना हो गया. फिर इसके बाद यही हमारा यहाँ पर था. अब दूसरी चीज़ हमारी क्या आती है, नेगेटिव जब भी हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, नेगेटिव जब भी हम कन्वर्ट करते हैं, तो जो भी हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ, जैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन है हमारी, हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करा, हमारी वर्ब है उसके बाद, तो ऑल दीज थिंग्स, अगर सेंटेंस के अंदर हमारे पास आर्टिकल्स हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, अयुंदे, जो कि आपको ऑलरेडी पता होंगे, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस करे हैं अयुंदे, तो वो हमारे अयुंदे नहीं रहते, दे चेंज इनटू द और द अपोस्ट्रोफी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, ठीक है. द अपोस्ट्रोफी समझ में आ गया होगा, जब वॉवल हो जाएंगे दो एक साथ, तब ये द अपोस्ट्रोफी हो जाएगा, ठीक है. ये चीज़ तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अभी अभी मैंने बताई. सो दिस इज़ द रूल. अगर किसी भी सेंटेंस में ऐसा होता है, हम नेगेटिव में कन्वर्ट करने लग रहे हैं, तो नेगेटिव जब भी कन्वर्ट होता है, ऑब्वियस सी बात है, वर्ब के आगे ना आएगा और वर्ब के बाद पा आएगा, ठीक है. तो नेगेटिव में जब भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अयुंदे का हमें ध्यान रखना है, दे विल चेंज इनटू द और द अपोस्ट्रोफी. बट देयर इज़ अ एक्सेप्शन. यहाँ पर हमारी एक एक्सेप्शन आती है जो कि आप लोगों को याद करनी पड़ेगी. कोई भी वर्ब हो, जैसे आपने अपलोदीर ले ली, ये जितनी भी हमारी वर्ब्स हैं इनमें से ले ली, अगर ये इन नेगेटिव में हम कन्वर्ट करें, उनके साथ अयुंदे आ रहा है, तो वो द में चेंज हो जाएगा, ठीक है, साफ सीधी बात है ये. बट जब हम एत्र वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं, एत्र वर्ब, आई होप ऑल ऑफ यू नो, एत्र वर्ब मीन्स इज एम आर, जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं. एत्र वर्ब जब हम यूज़ कर रहे हैं, तब हमारा जो है द के अंदर चेंज नहीं होता है, इट रिमेन्स एज इट इज़. सो दिस इज़ द रूल, ये भी आप लोगों को याद रखना है. फिर हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, ले नोम्ब्र ऑर्डिनो, मीन्स ऑर्डिनल नंबर्स. अब ऑर्डिनल नंबर्स जैसे कि आप लोगों को पता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सो ये हमारे ऑर्डिनल नंबर्स हैं दैट यू हैव टू ऑल ऑफ यू हैव टू रिमेंबर. फर्स्ट को हम कहते हैं प्रेमियर और प्रेमियर. प्रेमियर इज फॉर फेमिनिन एंड प्रेमियर इज फॉर मैस्कुलिन. दसियम, थ्रुआजियम, कैथ्रियम, सेंकियम, नवियम, ओनजियम, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू जस्ट हैव अ लुक. आप लोगों को समझ में आ जाएंगे क्योंकि आप लोगों को नंबर्स ऑलरेडी पता है, कार्डिनल नंबर्स आपको पता है अयुंदे. वैसे ही द जो हमारा है विच इज़ एन ऑर्डिनल नंबर, द के पीछे मैंने द इज़ 2. अब मेरे को इसको 2 की जगह मेरे को इसको सेकंड बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, ई एम ऐड कर दूँगी. तो ये हमारा बेसिक रूल होता है कि ई एम हम ऐड करते रहते हैं. बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, जैसे कि सैंक. सैंक मीन्स 5.
सैंक के पीछे हमने एम नहीं यू भी ऐड करा है साथ में, तो ये एक्सेप्शन से आप लोग जब इसको रीड आउट करोगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएंगे. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस चैप्टर नाउ. इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द एक्सरसाइज. अगर यहाँ पर आप लोगों को कोई भी डाउट आया हो जस्ट आस्क मी इन द कमेंट्स. आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा चैप्टर. अगर किसी भी टॉपिक में डाउट आता है एक बार दोबारा वीडियो को देखो, तब भी नहीं क्लियर होता तो पूछ सकते हो मेरे से. एंड इवन ऑन माई Gmail ID frenchhub25@gmail.com you can text me anytime and I'll try to respond to you as soon as possible. Thank you for watching. Stay tuned.